So we'll understand day 9, website hacking using SQL injections. Okay, so we'll try to understand SQL injections today first. Now, in order to understand SQL injections, you need to understand two things. First of all, you need to understand a web server side programming language. Let's call it as PHP. We can get started with PHP, ASP or JSP. Okay. Then we have a web server side database language. Okay. Database server, and let's say that is MySQL, written in SQL, structured query language. Okay. Now, so इन दोनों की knowledge आपको होनी चाहिए. Okay. Then you will be able to understand how SQL injections work. Clear? So in today's demonstration, first of all, what we will do, we'll develop a website and understand SQL injections. Okay. एक सिंपल कॉन्सेप्चुअल वेबसाइट बनाएंगे और SQL इंजेक्शंस कैसे होते हैं वो समझेंगे पहले. Now, let's do that. In order to do this, I'm going to develop this website in PHP plus MySQL. Okay. Plus MySQL. And I'm going to host this website on a WAMP server. Okay. WAMP server. So what this WAMP server is, it is actually known as Windows Apache MySQL PHP. Okay. And you should have Objective, you should have C++ redistribution installed for this. Okay. You can download WAMP from internet, it is freely available. Okay. On my computer I have WAMP installed already. So let me just tell you how can I quickly start it and how I can use it. So first of all, I'm giving you an introduction for WAMP. I can go to my start button, I can open my WAMP server. Okay. I can simply start my WAMP server. As soon as I start, it will ask me for administrative privileges, and at the bottom here you can see that there is a W created. Okay. अभी जो ये W है ये रेड कलर से है, जैसे ही WAMP इनिशियलाइज होके ऑनलाइन हो जाएगा यानी वर्किंग हो जाएगा वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके. आई कैन क्लिक ऑन दिस, लेफ्ट क्लिक, इट्स नॉट राइट क्लिक, इट्स अ लेफ्ट क्लिक. लेफ्ट क्लिक में आप जाके देख सकते हैं, हियर आई हैव सम प्रोजेक्ट्स व्हिच आर होस्टेड. I can go to phpMyAdmin and I can access databases directly. I have a www directory wherein we can store the files which we want to be accessible on the web server. Okay. यानी आपकी जो भी वेबसाइट्स होंगी वो सब इस www डायरेक्टरी में होस्टेड होंगी. उसके बाद में अपाचे सर्वर की वर्जन और उसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. PHP उसके वर्जन की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. MySQL जो इंस्टॉल्ड है उसकी और उसके वर्जन की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है. ओके. सो we'll go to the www directory here at the moment, and we can see that at the moment I have some applications already available. Okay. So on this I'm going to create a new application. Okay. So for this demo I'm creating a directory. Let me just call this directory as a demo directory. Okay. In the demo directory we will be creating our website which we will be using for testing SQL injections. Okay. So in the www demo directory I'm just creating a sample application at the moment, and I'm just calling this application as index.html. Okay. Clear? Make sure whenever you will rename your files with extensions, in your folder options your extensions for known file types should be checked. Okay. This means folder and search options में hide extensions for known file types should be unchecked. Okay. Only then you will be able to rename your files like this. Okay. Now
So let me just open this index file with a notepad editor. Okay, and on this notepad I am going to make a simple HTML just for the demo. Let's say I have created, how many of you know HTML? HTML आती है दोनों को? Basic HTML, हाँ, basic HTML. We have a HTML, then we have a head. Okay, in head we create title and scripts. Okay, let's say welcome to WAMP. Okay, and then we will have a body, and in that body we are going to have something like, let's say heading, WAMP server hosting this web page. Okay, so let's say we have created a sample web page. I am going to go to file and save using Ctrl S, and now the page has been saved and my WAMP server is running. WAMP server is at online mode, so anybody in the network who's connected to the same network will be able to connect me. Okay, I'm connected to the network SJ at the moment. You all are also connected to SJ. Connect to SJ and check your IP addresses. Okay, so we'll just go to command prompt. We all will check the IP addresses. ipconfig. Okay, and you can see that my IP address is 192.168.43.102. Okay, now, so this means the server IP address is this. Okay, WAMP server is running on this IP address. So this means this is a web server and you all are clients. You all will be able to connect to this web server. Okay, now whenever on this web server you will go to the demo directory, you will be able to view the page which I have just created in the demo directory. Okay, clear? Now, so जैसे ही आप इस URL को browse करेंगे, you will directly go into www directory, और उस www के अंदर अगर ऐसे हमने specify कर दिया तो demo आ जाएगा, और demo के अंदर जो applications होंगी वो visible हो जाएंगी. Okay, now, so everybody go to your browser. Just type in this IP address 192.168.43.102/demo. Okay. As soon as you click, you all will get this page. WAMP server hosting this web page. Okay. So now my computer has become a web server, and we all are web clients. Web clients can browse to an IP address and they will be able to access the web application. Okay. So now what we will do, we are making a sample website which will be vulnerable to SQL injections. Okay, and we are going to see how SQL injections execute. Okay, now, so what we'll do on this website, let's go to the directory here. Now I'm going to create a website which can be hacked using SQL injections. Okay, so in order to do that, I would like to do something like this. I'm going to create a vulnerable website using PHP and MySQL. Okay, clear? Now, so in order to proceed further, first of all, let me just make you understand how databases work. Then we are going to make a web page with which we are going to connect the database, and then we are going to execute the application. Okay, let's say the objective will be a bank application. We're going to create a bank application. Okay, within this bank application, we'll have an account number. Okay, we'll have account holder name, and we will have account balance, something like this. Okay, so let's just go to database and let's create a database. So we'll go to WAMP, we'll go to MySQL, we'll go to MySQL console. Okay, and we are going to create a database here. So at the moment, my WAMP server, I have a MySQL installed within this WAMP server, and I have a password here. The password is ABCDE12345. Okay, ABCDE12345. So I've got a connection to this MySQL. Now I would like to show you current databases available within MySQL server. So I have many databases available here. Okay,
bank, colony bazaar, XYZ, XYZ. Now I'm going to create another database. Let's say accounts नाम का मैं एक database बनाऊंगा, ठीक है? या SBI, anything we can make. Let's say. So we are going to create a database. Create database. Let's say SBI. Okay. So database has been created. Now if we go to show databases, you can see that an SBI database has been created. Okay. Now we want to create tables within SBI database. So first of all, we have to select the SBI database. So we will use something, use SBI. So database has been changed. Now if we execute show tables here, so there is no tables at the moment. So within SBI we are going to create accounts table. Okay, accounts नाम की एक table हम create कर रहे हैं. Now, so what next we need to do? Now we are going to create table accounts. Okay, and within that table accounts we are going to create some columns like name, which will be of text type. Okay, let's say we'll have a number. This will also be of text type. Then we will have a balance. This will be also, let's say, text type. Okay. Now, so we have created a table. Now if we write tables here, you can see that we have a table known as accounts here. Okay. Now in the accounts table, we are going to insert some entries. Let's say we'll do it something like this. Insert into accounts. Okay. And we can put the values. Let's say we want to put the value to a name. Okay. Name का हम देना चाहते हैं. क्या क्या बनाया था आपने? Name, number and balance. Okay. So we want to put some values into these corresponding columns. Let's say name will be, let's say मैंने पहले बना लिया देवांशु, ठीक है? Number will be 1, 2, 3, or let's say 1. Okay. Then we'll have some balance like 12 rupees something. Okay. No problem. काफी है इतना. Okay. Let's see. Now, let's say we'll go with some other account. एक और बनाते हैं. ठीक है. Let's say सौरभ. Account number 2. कितने चाहिए भाई पैसे बताओ? काफी हैं? कितने कर दो? 10 कर दो. नहीं यार ज़्यादा ठीक है. अब देखो. Let's say we have more accounts. Nancy. तुम्हें कितने चाहिए? बताओ. ठीक है. So we have got some values now. So we have 3 accounts here: Devanshu, Saurabh, and Nancy. Okay. Now let's say we'll go for select star from accounts, and we have got these things like we have 3 account holders: Devanshu, Saurabh, and Nancy. They have their individual account numbers and they have some balance in their accounts. Okay, clear? Bothra is so happy. Why? Now. So now what next you need to do? Once you have got values into accounts, now we want to make an application which is going to display accounts information to a user. Okay? A user will log in, user will give his account number, and user will get his account balance. Okay? Now let's say there was a developer who developed a website to display accounts information of users to them. Okay? Now let's say. So we'll go to this page here. Okay. Let's say we have created a new web page here, and we are going to call this web page as accounts.php. We're going to create that in PHP, accounts.php. Okay. So we have got a page, accounts.php. Let's right click, edit, and now we are going to write PHP code here. Okay. PHP आप लोगों को भी आती नहीं है, इसलिए मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता जाऊंगा how database connections work. PHP is PHP hyper preprocessor. Okay, this means if you specify a preprocessor, उस preprocessor के अंदर जितनी भी lines of statements होंगी, that will be interpreted by PHP interpreter. Okay, in case अगर preprocessor नहीं है, तो फिर वो बाकी lines as a hypertext इंटरप्रेट होगी. ओके,
So this PHP hyper preprocessor is this PHP question mark PHP. So anything you will write between this, that will be treated as PHP. Okay, you can use this PHP interpreter or PHP hyper preprocessor as many times as you want on a single web page. Okay, clear? Now, so let's say we are simply writing a PHP page. Now, within this PHP page, what we'll do, as soon as somebody will open accounts, he will receive an ID, okay, account ID, and depending on the account ID, information will be displayed about account holder's name and account balance. Okay, let's say. So now what we'll have, you can receive GET requests in PHP using $_get. Okay, जब भी हम HTTP रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी सर्वर को, तो या तो हम गेट रिक्वेस्ट भेजते हैं या हम पोस्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं. ठीक है, हम गेट रिक्वेस्ट के साथ में भी पैरामीटर्स भेज सकते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ में भी पैरामीटर्स भेज सकते हैं. अगर हमें गेट रिक्वेस्ट से कोई पैरामीटर्स रिसीव करने हो तो हम गेट यूज करते हैं. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द यूनिक आइडेंटिफायर जिसकी वैल्यू आपको रिसीव करनी है. ठीक है, लेट्स से आई एम गोइंग टू रिसीव एन आईडी वैल्यू फ्रॉम द URL. okay, this ID will be the account number. Okay, depending on the account number provided, I'm going to execute an SQL query using which I'm going to fetch the account name and the balance. So we have got a get request और उस get request में से हम ID पैरामीटर की वैल्यू को fetch करेंगे और हम उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे. Okay, let's say मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया account ID. Let's say PHP के अंदर डेटा टाइप्स नहीं होते. ओके, PHP में आप कोई भी वेरिएबल डॉलर यूज करके बना सकते हैं, डॉलर एंड नेम ऑफ द वेरिएबल. ओके, वॉट एवर द वैल्यू इज दैट विल बी स्टोर्ड इन दैट वेरिएबल. इट कुड बी अ स्ट्रिंग, इट कुड बी एन इंटीजर, इट कुड बी अ बूलियन. यू डोंट नीड टू स्पेसिफाई डेटा टाइप्स इन PHP. इंटीजर होगी तो ऑटोमेटिकली डेटा टाइप इंटीजर हो जाएगा, स्ट्रिंग स्टोर करोगे ऑटोमेटिकली डेटा टाइप स्ट्रिंग हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिकली डेटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत PHP में नहीं होती. सो यू विल रिसीव देन ID एंड यू विल स्टोर दैट इनटू एन अकाउंट ID. नाउ, so once you have received the account ID, now you are going to connect to your database. Okay, so first of all we have to specify database connection properties. / comment. Okay, we are going to specify database connection properties. In order to connect to a database, you need 4 properties. The first property is the host name, where your database is running. Okay, at this time, my database and my Apache server, where my application will be hosted, both are running on the same server. This is my computer, this is the same server on which database and application both will be running. So we will specify the host as localhost. Okay, localhost is actually a default DNS which is stored in HTTP configuration files within your Windows directory, where localhost corresponds to the IP address 127.0.0.1. Okay, this IP address is known as local loopback. Local loopback का मतलब अगर कभी आपको अपनी मशीन को एक्सेस करना हो तो फिर आप 127.0.0.1 IP पे एक्सेस करेंगे. ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड एवरी मशीन कैन एक्सेस हिमसेल्फ यूजिंग द IP address 127.0.0.1. Okay, clear? Now, so you can, we are accessing the host. The first information is host. Then we need to provide a username. Username is root for MySQL account. Okay, root is the default user, and on my MySQL we have the root account available. Then I have to specify password. Password is ABCDE12345 to connect to MySQL. Okay, and then I have to provide name of the database. Okay, the database is SBI, which we have just created. Okay, so in order to connect to the SBI database, these 4 properties are required: IP address of the MySQL server, username of the MySQL server, password of the MySQL server, and the database with which we want to connect to. Okay, now,
So once we have got these four information, now we are going to make a connection. Okay. To make a connection, we can, PHP is an object-oriented programming language, so we can use the keyword new to create a new instance of MySQLi. MySQLi is known as MySQL improved extensions. This is a method, new MySQLi, which is going to create a new instance of a connection. Okay. This connection requires 4 arguments: host, username, password, and database. Okay. Once the connection is successful, you will receive an object wherein you will get a connection directly to the database, and then you can interact with database tables, their columns, and you can do whatever stuff you want. So let's say within new MySQLi, we are going to provide host, $username, $password, $db name. Okay, clear? Now what next we need to do? So once we have got the new instance, we are going to store the new instance in a variable known as con connection. Yes, भी नहीं है चलेगा. पुलकित सर को दे दो. Okay. Now, so what you have is, you have got, DB name लिख दिया मैंने, sorry, it is database. Okay, database. समझ में आ रहा है? हाँ, कौन क्या करेगा? The new instance of MySQLi which is created, now it is going to be stored in this con. Con is an object using which you can access methods which are available in MySQLi. ठीक है? There is a class MySQLi, उसके अंदर multiple methods defined हैं, जैसे execute a query, get the result, okay? Fetch the result. All these things can be executed using this con object. Okay. So now what we'll do, we have created a new instance to the database and we have saved that into con. Now using this con, we are going to execute a query. Okay. And before executing the query, we would like to write a query first. So let's just write a query. So we are going to create a query. This query will be a string. Okay. Query क्या होगी? We can execute a query something like this. Let's say if this is your database, we can execute something like this. Select, you can say name, balance from accounts where number is equal to 1. Okay. Since it is a text, integer तो है नहीं है, अभी यहाँ पे नंबर दिया तो ये चल रहा है, लेकिन वैसे हमको ये ऐसे देना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ स्ट्रिंग, ऐसे. ठीक है? क्लियर? इट्स अ स्ट्रिंग, इट्स अ टेक्स्ट टाइप. नाउ क्लियर? नाउ लेट्स सी. सो व्हाट वी लाइक टू डू, लेट्स से we will come here. Where will come? Execute कर दिया, ये समझ में आ गया? So we are going to write this in our code here. So we'll do it something like this. Select name, comma, balance from accounts where number is equal to, no, not 1, the account ID which we have received, because it will be a variable. Okay. So what we'll do, now here, after this number, we have to specify the value, and what we'll do, we'll use a dollar. Dollar is known as concatenation in PHP. जैसे प्लस होता है concatenation, generally programming languages में, PHP के अंदर dot is the concatenation operator. Okay, so with this string, we are going to concatenate the account ID. Okay, so we have used a dollar here, and then we will provide dollar account ID. Okay, clear? Is that clear? So now we have specified a query, dollar account ID. So whatever account ID will be, let's say we have provided 1, 2, 3, so a query will be executed. Okay, now let's say now we have specified a query, now we have to execute a query. Okay, to execute a query, we will do something like this, $con. This is known as scope resolution.
ओके जैसे डॉट ऑपरेटर बाकी लैंग्वेजेस में होता है स्कोप रेजोल्यूशन, आपने ऑब्जेक्ट डॉट लगाया तो यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ मेथड्स. ओके इन द सेम वे इन PHP this dash and greater than sign is scope resolution. Using the scope resolution you can access all the methods which are available within MySQLi. Okay, so to do this we'll do it something like this: $con of query. Okay, query is a method and within this query method we are going to pass an argument query which we want to execute. Okay, तो ये जो $query था ये एक वेरिएबल है, इसके अंदर हमने क्वेरी डिफाइन किया है, वो वेरिएबल हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में पास कर दिया. दिस इज द नेम ऑफ द मेथड. ओके एंड दिस इज एन आर्ग्यूमेंट. सो दिस क्वेरी विल बी एग्जीक्यूटेड यूजिंग दिस क्वेरी मेथड एंड वॉट एवर द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेरी इज दैट इज गोइंग टू बी स्टोर्ड in a result, $result. Okay, so query method was available in MySQLi and we have created an object of MySQLi known as con, and using that con object we have executed query method, and within that query method we have provided an argument $query which contains your query: select name balance from accounts where number is equal to account ID. Clear? Now, so once you have got a result, now what you will do, let's say जब आप कि यहाँ पे क्वेरी एग्जीक्यूट हुई थी, यू हैव गॉट सम रिजल्ट एंड यू हैव गॉट सम वैल्यू लाइक 1 row in set, we have got the number of row. Okay, so we can check the number of rows returned. So we can simply execute it something like this: if $result, it is also an object. Using this you can get value like number of rows. Okay, इस रिजल्ट में कितनी रोज रिटर्न हुई है. इफ दैट इज ग्रेटर देन 0, बिकॉज यहाँ देखिए अगर 1 रिटर्न हुआ तो 1 आया वैल्यू, जितनी वैल्यूज रिटर्न होगी 1 2 3 उतनी रोज वैल्यू रिटर्न होगी. तो दिस मीन्स वी कैन से कि इफ इट इज ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स सम वैल्यूज हैव बीन रिटर्न, यानी दिस क्वेरी हैज बीन एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली. एल्स वी कैन राइट अदर स्टेटमेंट. ओके, सो विल से लेट्स से if query executed successfully and we have got an account number, we are going to print some values. Okay, so to print some values we can use echo command. Echo. Okay, using echo what we'll do, we'll specifically specify name. Let's say हम एक ऐसा बना लेते हैं h2 name is. Okay, चलो ऐसा नहीं, चलो मान लो इफ हो गया, रिजल्ट आ गया, ठीक है रिजल्ट है, तो रिजल्ट से पहले हम डेटा फेच करेंगे डेटाबेस के अंदर से. ठीक है, क्लियर? टू डू दैट विल एग्जीक्यूट अ व्हाइल लूप. ओके, विद इन दिस व्हाइल लूप व्हाट विल डू, विल गेट द नंबर ऑफ रोज रिटर्न. ओके, सो विद दिस व्हाइल लूप व्हाट विल डू, विल एग्जीक्यूट इट समथिंग लाइक दिस: $row विल रिट्रीव रो बाय रो, जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी उनको हम एक एक करके रिटर्न करेंगे व्हाइल लूप में. while row is equal to $result fetch fetch associate. There is a method known as fetch associate which is available in the result method, result object. fetch associate क्या करता है, एक associative array रिटर्न करता है. associative array means आप उसके इंडेक्स के बेसिस पे या उसके कॉलम नेम के बेसिस पे वैल्यू निकाल सकते हैं उस रो की. ठीक है, क्लियर? तो associative means this is like associative. Let's say this is your row. Okay, ये एक रो है. अगर आप फर्स्ट रो की नेम कॉलम के बेसिस की वैल्यू निकालेंगे तो देवांशु निकल जाएगी, और बैलेंस कॉलम की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 12 निकल जाएगा. अब इसका मतलब क्या है, ये एसोसिएटिव है. दिस इज द की, नेम इज द की एंड देवांशु इज द वैल्यू. सो दिस इज नोन एज एसोसिएटिव. की इज एसोसिएटेड विद द वैल्यू. ओके, सो नाउ व्हाट वी कैन डू, लेट्स से जैसे ही हमने ये एसोसिएटिव लिस्ट निकाली वो हमने रो में स्टोर कर दी. व्हाइल लूप उतनी बार एग्जीक्यूट होगा जितनी नंबर ऑफ रोज रिटर्न होंगी. ओके, फेच एसोसिएट एक एक बार एग्जीक्यूट होगा और एक एक एलिमेंट फ्रॉम द डेटाबेस इट विल फेच एंड कीप इट इन द रो. ओके, अब देखिए, अब इस रो में से हम वैल्यूज निकालेंगे. लेट्स से मैंने सबसे पहली वैल्यू निकाली नेम. $name इज इक्वल टू $row ऑफ डबल कोट्स में नेम.
जो भी नेम की थी वो मैंने फेच की और मैंने डॉलर नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दी. ओके, इन द सेम वे आई हैव गेट द बैलेंस डॉलर रो ऑफ बैलेंस. ओके, क्लियर? नेम भी आ गया, बैलेंस भी आ गया. अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एको प्रिंट कर देंगे. एको इज समथिंग लाइक प्रिंट एफ इन सी. एको नेम इज डॉलर डॉट डॉलर नेम. ओके, एंड लेट्स से हम इसको थोड़ा सा HTML में कर देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा सा दिखाई देगा. h2 डॉट फिर लगा के /h2 and break a new line. Okay, in the same way we are going to print another /h2. वैसे h2 में ब्रेक लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हेडरिंग में ऑटोमेटिकली न्यू लाइन अपेंडेड होता है. h2 and balance is डॉलर BALANC बस. ओके, ओह सॉरी, यहाँ पे भी h2 क्लोज करना पड़ेगा ना. ओके, क्लियर? सो अब हम क्या करेंगे, जैसे ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी एक आईडी आएगा, उस आईडी के बेसिस पे डेटा फेच होगा और एक स्टेटमेंट आपके सामने आ जाएगी, नेम इज दिस एंड बैलेंस इज दिस. क्लियर? ओके, सेव कर दिया मैंने इस पेज को. एक बार क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ. जैसे ये accounts.php पेज ओपन होगा, वी आर गोइंग टू रिसीव एन आईडी. ओके, then we are going to connect to the database, then we are going to execute a query. Okay, if we have got some result, we are going to fetch the result. If we are not going to get a result, we are going to print something like that, echo no invalid account. Okay, else में हम invalid account print कर देंगे. लेट्स से इसको भी हम हेडिंग में कर देते हैं ताकि बड़ा सा दिखाई दे, /h2. ओके, क्लियर? समझ में आ गया? अब देखिए, सेव कर दिया हमने इसको. अब चलते हैं. नाउ लेट्स गो टू दिस डेमो, और डेमो के अंदर जाके वी हैव ओपन दिस accounts.php. ठीक है, accounts.php किया. अभी मुझे एक एरर दिखा रहा है, अनडिफाइंड इंडेक्स आईडी, क्योंकि हमने कोई यहाँ पे आईडी स्पेसिफाई नहीं किया है साथ में पैरामीटर में, जबकि अंदर ही इज ट्राइंग टू चेक वेदर एन आईडी इज रिसीव्ड और नॉट. ओके, सो इन ऑर्डर टू मॉडिफाई दिस, ये जो वल्नरेबिलिटी है ना, जैसे अब कोई गलती से भूल गया प्रोग्राम में लिखना, तो दिस इज नोन एज पाथ डिस्क्लोजर वल्नरेबिलिटी. पाथ पता चल जाता है कि कौन से पाथ के अंदर कौन सी फाइल्स स्टोर्ड है. ठीक है, तो दिस विल बी यूटिलाइज्ड व्हेनेवर यू विल बी एग्जीक्यूटिंग समथिंग लाइक फाइल इंक्लूजन. जब आप कोई फाइल इंक्लूड करोगे सर्वर पे, तो कौन से पाथ पे हो रही है आपको पता चल जाएगा. फिर आप उस पाथ पे रिडायरेक्ट करके आप उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं. एंड दिस फाइल कुड बी अ शेल. व्हाट अ शेल कैन डू, शेल कैन गिव यू 100 फुल कंट्रोल ऑफ अ पर्टिकुलर सर्वर. ओके, कैसे होता है वो भी आप सीखोगे. नाउ लेट्स से, सो लेट्स से ये पाथ डिस्क्लोजर वल्नरेबिलिटी है. अगर हमें प्रोग्राम में पाथ डिस्क्लोजर वल्नरेबिलिटी हटानी है, cvamp www demo accounts.php, तो अभी वो हम हटा देंगे, मैं भी आपको बताऊँ. ठीक है, लेट्स से मान लो तो ये अकाउंट्स था, accounts.php में नाउ यू वांट टू गिव अ आईडी, क्वेश्चन मार्क लगा के यू कैन गिव द पैरामीटर्स. ओके, लेट्स से मैंने एक आईडी वैल्यू लगाई, क्वेश्चन मार्क आईडी इज इक्वल टू, लेट्स से आई हैव प्रोवाइडेड द वैल्यू 1. Okay, so in your accounts.php you are sending a GET request and you are sending a parameter ID with the GET request. Okay, so this ID will be received in the code here. Okay, this ID will be received in the code, and whatever value will be received will be stored in your account ID. Okay, now let's see. So let's say if we executed 1, so we have got a response something like this. Okay, your name is Devanshu and a balance is 12. Okay, let's say if I have provided account number 2, we have got, okay, the account number is, name is Saurabh and balance is 1200.
Let's say if I've specified third, that will be Nancy with some value. And let's say if I've specified fourth, that means invalid account. Okay. So let's say this is a request. Clear? Okay. अब ये जो request है, now this is a website, and say I was an attacker, I was using this website. I've seen this website wherein we can provide the account number and we can get the balance. Okay. Now I thought of an idea. Can I hack this website? Okay. It's a simple website wherein there is a simple page. It is just connected to a database, and I'm thinking, can I hack it or not? Okay. So how will we proceed with this? Let's have a look. So this is a very simple website. इसमें कोई वल्नरेबिलिटी तो हमने कोई ऐसी डाली नहीं, सीधा हमने एक कोड लिखा, वैल्यू रिसीव की, डेटाबेस से चेक किया और वैल्यू आउटपुट कर दिया. ओके. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द एसक्यूएल इंजेक्शन स्पॉट. सो यू हैव गॉट अ सैम्पल वेबसाइट रेडी. ओके. अब उसको कितना भी HTML CSS से ब्यूटिफाई करना है वो आप कर सकते हैं. लॉजिकल पार्ट मैंने आपको बता दिया कि यू कैन गिव द वैल्यू, इट विल कनेक्ट टू डेटाबेस, फेच द वैल्यू एंड विल डिस्प्ले द वैल्यूज टू. ओके. Let's see. Now we will start with SQL injection attacks. Okay. Step 1. Check if site is vulnerable to SQL injections. Okay. कैसे चेक करेंगे? चेक करने के दो केसेस हैं. केस ट्रू, response. Okay. Let's say case 1 अगर true है तो response 1 है. case 2 अगर false है तो response 2 है. Okay. if response 1 is not equal to response 2, then vulnerable. Okay. अगर आपने एक ट्रू कंडीशन दी और एक फॉल्स कंडीशन दी, ट्रू कंडीशन में रिस्पॉन्स ट्रू है, फॉल्स कंडीशन में रिस्पॉन्स फॉल्स है, तो दैट मीन्स साइट मे बी वल्नरेबल टू एसक्यूएल इंजेक्शन. जरूरी नहीं है कि हो, बट इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी. अगर पॉसिबिलिटी होगी तो फिर आगे हम अटैक करना शुरू करेंगे, चेक करना शुरू करेंगे. So let's check this. So let's say this is your website wherein a user luckily logged into his account. Let's say this was the default request executed and he got his account name and balance. Okay. He checked, okay, I have only 12 rupees and I cannot withdraw any money. Okay. Now what I need to do? I need to attack this system so that I can increase my account value and I can get values from the account. Okay. What can be done? Let's see. So first of all, the first thing which we try to do or check is to use an apostrophe in order to change the values. Okay. क्या है, जैसे मान लीजिए ये जो आपका ये कंडीशन था, अभी क्या हो रहा है, आप बाहर से ये क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहे हैं where number is equal to 1. अभी एग्जैक्टली ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है इस पेज पे, सर्वर पे. Okay. Now let's say in case of this 1, if I just execute an apostrophe and I execute yes, what will be done? There could be some error. कोई error आ गया यहाँ पे, ठीक है? Just hold on. Okay, let's say ये, ठीक है. मान लो मैंने नंबर हटा के अगर सिंपल एक अपॉस्ट्रोफी दे दिया इस ऑप्शन पे, एंटर किया, क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही. आई एम एक्सपीरियंसिंग सम इश्यूज हियर. ओके, लेट्स से अपॉस्ट्रोफी क्लोज किया मैंने और वापस आ गया मैं नॉर्मल सिलेक्शन में. नाउ लेट्स यही चीज अगर मैं यहाँ वेब सर्वर पे करूँ, मैंने एक अपॉस्ट्रोफी दिया
और एंटर कर दिया, ठीक है, तो क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं हुई. ओके, ट्राइंग टू गेट अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉन ऑब्जेक्ट एंड आई हैव गॉट एन इनवैलिड अकाउंट. दैट मीन्स वट एवर रिस्पॉन्स आई हैव डन, द वेबसाइट हैज रिस्पॉन्डेड समहाउ. कुछ ना कुछ जिसने रिस्पॉन्स किया, इनवैलिड दे दिया, ठीक है, यानी क्वेरी कुछ ना कुछ तो एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है. अब मैंने एक काम किया, ये अपॉस्ट्रोफी के बाद में अगर रिस्पॉन्स बदल गया तो मुझे लगा कि हाँ यार शायद एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि मैं जो वैल्यूज यहां से दे रहा हूं वो एग्जीक्यूट हो रही है. एसक्यूएल इंजेक्शन का सीधा मतलब ये है कि जब भी आप यूआरएल से कोई वैल्यू दें और वो सीधा डेटाबेस में जाके एग्जीक्यूट. डेटाबेस में एग्जीक्यूट करने की आपके पास अथॉरिटी तो है नहीं, बट आप यूआरएल से पैरामीटर्स दे रहे हैं और वो चीज जाके डेटाबेस में एग्जीक्यूट हो रही है. दैट इज अ प्रॉब्लम, दैट इज नोन एज एसक्यूएल इंजेक्शन. ओके, अब देखते हैं कैसे. नाउ सो लेट्स से आई हैव सीन दैट जैसे ही मैंने इसको अपॉस्ट्रोफी दिया तो इनवैलिड अकाउंट आ गया, विच मीन्स ये हो गई एक फॉल्स कंडीशन. 1: डज नॉट एग्जिस्ट. ओके, फॉल्स कंडीशन हो गई, ठीक है. अपॉस्ट्रोफी देने के बाद जैसे इसने रिस्पॉन्स चेंज किया, मुझे लगा कि कुछ है गड़बड़, तो अब मैं इसमें चेक करूंगा एक ट्रू कंडीशन और एक फॉल्स कंडीशन, ठीक है. अब देखो मैंने क्या किया, जैसे मान लो 1 था, 1 वैल्यू के बाद में मैंने इसके साथ में एक और कमांड एग्जीक्यूट की, एंड, ठीक है. मैंने चेक किया 1 = 1, एक और कमांड एग्जीक्यूट कर दी मैंने इसके साथ में, ठीक है. ये ट्रू कंडीशन है, 1 = 1 होता है, 1 = 1. दिस इज अ ट्रू कंडीशन. लेट्स से इस ट्रू कंडीशन के ऊपर मैंने एंटर किया और आप देखिए क्या फर्क पड़ा, एग्जीक्यूट हो गई, कोई रिजल्ट, मतलब सही रिजल्ट मिला मुझे. यानी जब मैंने सर्वर को एक ट्रू कंडीशन दी तो वो एग्जीक्यूट किया उसने. ट्रू कंडीशन का मतलब, लेट मी जस्ट शो यू हियर, जैसे ये आपका डिफॉल्ट क्वेरी है 1. अब इसके साथ में मान लो अगर मैं एक और ट्रू कंडीशन दे दूं, एंड 1 = 1, और मैं इसे एग्जीक्यूट कर दूं तो भी मेरे पास रिटर्न आ रहा है रिजल्ट. क्लियर? दैट मीन्स मैं यूआरएल से दे रहा हूं बट सेम वो क्वेरी मेरे डेटाबेस में एग्जीक्यूट हो गई. ओके, एंड आई एम गेटिंग अ ट्रू रिजल्ट. सो दिस इज व्हाट आई हैव गॉट, दिस इज रिस्पॉन्स 1 इन माय ट्रू कंडीशन. अब मैंने एक फॉल्स कंडीशन टेस्ट की. लेट्स से अगर फॉल्स कंडीशन इज दिस, 1 = 2, फॉल्स कंडीशन हो गई, तो फॉल्स कंडीशन में यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी रिजल्ट. ओके, पहली वाली क्या कंडीशन थी, फर्क नहीं पड़ा, इसके साथ में एक और कंडीशन हमने जोड़ दी. तो अब जब दोनों का रिजल्ट ट्रू आएगा तो ही रिजल्ट रिटर्न होगा, दोनों अगर ट्रू नहीं होंगी तो रिजल्ट नहीं आएगा. ओके, यहां पे दोनों कंडीशंस ट्रू थी, नंबर 1 इज ऑल्सो ट्रू एंड 1 = 1 इज ऑल्सो ट्रू, हेंस वी हैव गॉट द रिजल्ट. तो नाउ वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट द सेम स्टफ हियर, ठीक है. अब हम यहां क्या करेंगे, id = 1, एंड चेक किया मैंने 1 = 2, एंटर किया, क्या आया, इनवैलिड अकाउंट. मतलब मैं जो क्वेरीज दे रहा हूं यूआरएल से वो डेटाबेस में एग्जीक्यूट हो रही है, एंड द एप्लीकेशन इज एग्जीक्यूटिंग विद द डेटाबेस एंड रिस्पॉन्डिंग मी इन द सेम वे. तो नाउ आई थिंक कि यार इट कुड बी वल्नरेबल टू एसक्यूएल इंजेक्शन बिकॉज आई कैन इंजेक्ट माई एसक्यूएल क्वेरीज फ्रॉम अ यूआरएल इनटू अ database of a website. Okay, clear? Now let's see. ये मैं अपने से कर रहा हूं या आप अपने से भी कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है. क्लियर? अब देखिए, तो इट कुड यू कैन यूज एनीथिंग. अपॉस्ट्रोफी इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जनरली अपॉस्ट्रोफी स्ट्रिंग्स के लिए यूज किया जाता है. तो अगर आपको स्ट्रिंग मैच करनी है तो आप अपॉस्ट्रोफी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली 1 = 1 भी दे सकते हैं. जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं अपॉस्ट्रोफी नहीं यूज कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये एक स्ट्रिंग है 1 = 1 और एंटर कर रहा हूँ, तो भी ये ट्रू है. जरूरी नहीं है अपॉस्ट्रोफी. 1 = 2 ये फॉल्स कंडीशन है, एम्प्टी सेट. तो यही चीज मैं यहाँ पे भी दे सकता हूँ, ऐसे कोई ऐसी दिक्कत नहीं. अपॉस्ट्रोफी मैंने इसलिए किया स्पेसिफाई करने के लिए. अभी हम स्ट्रिंग्स मैच कर रहे हैं, एक इंटीजर वैल्यू हो गई, एक स्ट्रिंग वैल्यू हो गई. 1 एंड 1 = 1 लेट्स से, तो भी ट्रू है. क्लियर? तो एक ट्रू कंडीशन हो गई, एक फॉल्स कंडीशन. ट्रू कंडीशन में
रेस्पॉन्स 1 आया, फॉल्स कंडीशन में रेस्पॉन्स 2 आया, रेस्पॉन्स 1 इज नॉट इक्वल टू रेस्पॉन्स 2, दैट मीन्स इट इज वल्नरेबल टू एसक्यूएल इंजेक्शन, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे अपना अटैक। ठीक है, क्लियर? देखो कैसे शुरू करेंगे अटैक। अब क्या होता है, जैसे आपकी एक क्वेरी है id equal to 1, okay, let's just go to the database here, let me just make you understand। अब यहाँ पे जैसे आपके पास एक क्वेरी है where number is equal to 1, okay, let's say आपने एक एंड लगाया, ठीक है, आप एंड लगा के दो इंडिविजुअल क्वेरीज एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे एक यूनियन कमांड होती है MySQL के अंदर, डेटाबेसेस के अंदर, जिसके थ्रू आप दो क्वेरीज को पैरेलली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से जैसे मान लो मैंने कहा कि नंबर इक्वल टू 1 मैंने किया, इसके साथ में मैंने एक और क्वेरी कर दी यूनियन सेलेक्ट, इस क्वेरी के साथ मैंने एक और क्वेरी का यूनियन कर दिया, और वो क्वेरी में कौन सी एग्जीक्यूट कर रहा हूं, सेलेक्ट क्वेरी। ठीक है, लेट्स से मैंने कहा सेलेक्ट कॉलम 1, ओके, सेलेक्ट इंडेक्स दे दिया मैंने कॉलम 1, क्लियर? एग्जीक्यूट की मैंने क्वेरी, जब मैंने ये क्वेरी एग्जीक्यूट की तो ये बंदा मुझे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द यूज्ड सेलेक्ट स्टेटमेंट्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, यानी मैंने जो यूनियन किया सेलेक्ट 1, मैंने कहा कि अगर इसके अंदर एक कॉलम है तो वो कॉलम दिखा दो और डिस्प्ले कर दो। ठीक है, दिस मीन्स जो क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है सेलेक्ट नेम कॉमा, मतलब इस क्वेरी का मतलब ये है सेलेक्ट नेम कॉमा बैलेंस हमने किया, दो कॉलम्स हैं, फ्रॉम अकाउंट्स वेयर नंबर इज इक्वल टू 1, यूनियन करके मैंने सेलेक्ट 1 किया, मतलब शो मी द फर्स्ट कॉलम, ये शो मी द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट कॉलम एंड द इंडेक्स ऑफ सेकंड कॉलम। तो इस क्वेरी में ये जो रिस्पॉन्स आया है कह रहा है कि इस क्वेरी में एक कॉलम सेलेक्ट नहीं हो रहा, एक से ज्यादा कॉलम्स है। ठीक है, तो लेट्स से मान लो मैंने कहा कि ठीक है, अगर एक से ज्यादा कॉलम्स हैं तो मैं चेक कर सकता हूं कि कौन कौन से कॉलम्स, कितने कॉलम्स हैं। तो मैंने यूनियन किया सेलेक्ट, एक कॉलम के बाद मैंने दूसरा कॉलम ट्राई किया, चलो मान लो एक कॉलम नहीं है, दो कॉलम हो सकते हैं, 1, 2। ठीक है, लेट्स से मुझे अभी पता नहीं, मैंने एंटर किया तो आई हैव गॉट द करेक्ट क्वेरी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, पहली क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई और वैल्यूज आ गई, दूसरी भी क्वेरी यूनियन के साथ में एक और सेलेक्ट क्वेरी हो गई और वो भी सेलेक्ट के अंदर वैल्यूज इंसर्ट दिख रही हैं, जबकि है तो नहीं वैल्यू, डेटाबेस में तो नहीं है, अभी भी इंसर्ट नहीं हुई है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट्स अभी भी है नहीं। लेकिन अगर मैं सेलेक्ट 1, 2 करूं तो मैं कॉलम सेलेक्ट कर सकता हूं 1 और 2 कि नेम कॉलम कौन सा और बैलेंस कॉलम कौन सा है। ठीक है, अब देखो इसको, अब अगर जैसे मान लो ये मैं यहां से एग्जीक्यूट करूं 1, ठीक है, मैंने क्या किया, यूनियन सेलेक्ट 1, ठीक है, 1 एग्जीक्यूट किया, एंटर किया, तो ये मुझे क्या कह रहा है, नहीं जी ये इनवैलिड है। ठीक है, इससे मेरे को स्पेसिफिक एरर नहीं दिखाया कि क्या है, लेकिन इसने मुझे कहा कि नहीं ये जो आप कर रहे हो ना ये सही नहीं है। तो मैंने कहा कि ठीक है, हो सकता है भाई नहीं होंगे उतने नंबर ऑफ कॉलम्स, मैंने इसके साथ में एक और यूनियन किया, यूनियन सेलेक्ट 1, 2, एंटर। तो अब जब मैंने सेलेक्ट किया तो अब मेरे पास 2 रोज आ गई। ठीक है, नेम बैलेंस एंड नेम बैलेंस, क्योंकि व्हाइल लूप 2 बार हो रहा है, 2 रोज आ रही है, दोनों बार एग्जीक्यूट हुआ, दोनों करके मेरे को आउटपुट आ गया। ठीक है, अब एक चीज समझो, जैसे मान लो मैंने सेलेक्ट किया 1, 2, ठीक है, अगर मैं यहां से 1 और 2 सेलेक्ट कर सकता हूं तो मैं कुछ भी सेलेक्ट करवा सकता हूं। ठीक है, लेट्स से मैंने एक चीज किया 1, ठीक है, यूनियन सेलेक्ट, ओके, एक और क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहा हूं मैं इसके साथ में। जैसे मान लो मैंने फर्स्ट केस दे दिया, इसको मैंने क्या दिया, बैलेंस इज पुलकित फर्स्ट कॉलम। ठीक है, सेकंड कॉलम में मैं एक और एंट्री कर रहा हूं, दैट इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, एंटर कर दिया,
क्या आ रहा है, आई एम फेचिंग अ रिजल्ट जिसमें डेटाबेस के अंदर से मैं ऐसा दिखा रहा हूं कि अच्छा उसके अंदर एक पुलकित नाम की भी एंट्री है और उसके अंदर ये वैल्यू 786878 समथिंग समथिंग समथिंग। कर कहां से रहे, यूआरएल से कर रहे हैं। अभी देखो, अभी क्या किया हमने, इस स्टेट से मुझे क्या लगा, पहले तो मुझे पता चला कि एसक्यूएल की वल्नरेबिलिटी हो सकती है। वल्नरेबिलिटी होने के बाद मैंने एक क्वेरी एग्जीक्यूट किया जिसमें मैंने कॉलम को सेलेक्ट करने की कोशिश की, चेक करने के लिए कि कैन आई राइट सम डेटा विच कैन बी रिटर्न और डिस्प्लेड मी बैक ऑन टू द वेब पेज। ठीक है, और ये मेरे पास, अब ये देखो वो दूसरी साइट है और उसके वेब पेज पे मुझे मेरा डेटा दिखाई दे रहा है जो मैं यूआरएल से इंजेक्ट कर रहा हूँ, और वो इंजेक्ट होके ऐसा मेरे को दिखाई दे रहा है वापस मेरे वेब पेज पे। यानी आई कैन क्रिएट एनीथिंग व्हाटएवर आई वांट एट दिस प्लेस। नाउ अभी इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, फर्क कहां पड़ेगा अब देखते हैं। देखिए, मान लीजिए जैसे ये आपका क्वेरी है सेलेक्ट 1 2, ओके। इन केस अगर आप इस नंबर को इन्वर्स कर दें, यानी इस कंडीशन को अगर आप गलत कर दें, ठीक है, कंडीशन गलत हो गई, तो क्या होगा, सिर्फ वही कॉलम दिखाई देगा जो आप चाहते हैं। ठीक है, क्वेरी को मैंने ऑल्टर कर दिया, हो सकता है 2 इंडेक्स में नहीं चाहता था तो मैंने पहली कंडीशन को गलत कर दिया और यूनियन लगा के दूसरी कंडीशन को ट्रू कर दिया। अगर दूसरी कंडीशन का जो रिजल्ट है वो मुझे दिख जाए, उसी कॉलम के बेसिस पे मेरे को वैल्यू मिल जाए। ठीक है, अब अगर यही चीज मैं यहां कर दूं अकाउंट बैलेंस में, ठीक है, लेट्स से 1 पे आए, इस 1 को मैंने फॉल्स कंडीशन कर दिया -1, ओके, एंड आई डिड यूनियन सेलेक्ट, लेट्स से मैंने कहा देवांशु, ₹12 थे ना, लेट्स से मैंने कहा इतने हैं, क्या वैल्यू आ रही है कि अकाउंट नेम देवांशु है आईडी का और ये इतना अकाउंट बैलेंस है। ठीक है भाई, साइट पे तो कुछ नहीं लिखा ना डेटाबेस में ना साइट पे है, बट अटैकर इस तरीके से एसक्यूएल को मॉडिफाई कर रहा है अपनी स्किल्स की वजह से कि सिस्टम वो रिस्पॉन्ड कर रहा है जो वो खुद चाहता है। ठीक है, अब देखो ना, इस स्टेज तक पहुंच के हमें ये चीज क्लियर हो गई कि वॉट एवर क्वेरीज आई एम डूइंग दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड ऑन अ डेटाबेस विदाउट आई एम हैविंग एनी परमिशंस टू इट। मैं साइट पे जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के जो क्रेडेंशियल्स हैं उनको मैं डायरेक्टली बाहर यूआरएल से एक्सेस कर पा रहा हूं, और उन क्रेडेंशियल्स के थ्रू मेरे को जो कमांड एग्जीक्यूट करनी है वो मैं डेटाबेस में एग्जीक्यूट कर पा रहा हूं। 99% applications are done with databases. Everybody is writing the same code. Okay? If you understand कि SQL injection कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो आप तो कुछ भी एक्सेस कर सकते हो, किसी भी डेटाबेस को मॉडिफाई कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, अपने हिसाब से उसको मूव कर सकते हो। Now let's see. अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे। अब मेन चीज क्या हुई, जैसे मान लो मैंने यहाँ से एक वैल्यू दी -1 and I have provided some values. Okay? Now in this database there is a feature कि जो भी टेबल्स आप रिटर्न कर रहे हैं उनको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं? इनटू अ डायरेक्टरी यू कैन एक्सपोर्ट। जो भी टेबल या जो भी रिजल्ट आपने जनरेट किया वो रिजल्ट आप एक फाइल में या एक डायरेक्टरी में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑन दैट कंप्यूटर मशीन। नाउ लेट्स सी, सो यहाँ पे हम एक्सप्लॉइट करेंगे पाथ डिस्क्लोजर वल्नरेबिलिटी का, और फिर उस डिस्क्लोजर वल्नरेबिलिटी के बेसिस के ऊपर हम एक डायरेक्टरी के अंदर डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसको यूनियन कर दिया -1, मैंने यहाँ पे कर दिया 1,2, 1,2 सेलेक्ट करने के बाद में जो भी वैल्यूज आई, सेलेक्ट 1,2, देयर इज अ कमांड नोन एज इनटू आउट फाइल। क्या कमांड होती है? इनटू आउट फाइल, जिसके थ्रू आप एक आउटपुट फाइल जनरेट कर सकते हैं जो भी रिजल्ट जनरेट हुआ, और वो टेक्स्ट विल गो एंड विल बी स्टोर्ड इनटू दैट फाइल। ओके, तो लेट्स से मान लो मैंने यहां पे ऐसे बनाया एक इनटू आउट फाइल। ओके, एक आउट फाइल बनाई।
आउट फाइल में मेरे को पाथ देना है कि कौन सी डायरेक्टरी में मुझे बनानी है, ठीक है। स्ट्रिंग प्रोवाइड करने के लिए मुझे डबल कोट्स देने पड़ेंगे, ठीक है। मैंने बोला सी ड्राइव में, ओके, सी ड्राइव में इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है, सी लेट्स से वैम्प, ठीक है, सी ड्राइव में वैम्प, ये ऐसे कर लेते हैं, चलो ब्राउजर पे उल्टे होते हैं, यहाँ से एक बार चेक कर लेते हैं क्या है, ठीक है। सी वैम्प www के अंदर डेमो के अंदर एक मैं फाइल बनाना चाहता हूँ test.txt। कुछ गलत होगा तो हम इनटू आउट फाइल का कोड एक बार चेक कर लेंगे क्या होता है सिंटेक्स, अदरवाइज लेट्स से वी आर जस्ट ट्राइंग। तो जो भी यूनियन सेलेक्ट 1 और 2 होगा वो जाके कहाँ स्टोर हो जाएगा, एक test.txt में स्टोर हो जाएगा, ओके। एंटर किया मैंने, तो इस सेइंग नो नो देयर इज सम इनवैलिड आर्ग्यूमेंट, आपने जो ये दिया है सी वैम www डेमो, ये आपको डबल देना पड़ेगा, सिंगल कोट काम नहीं करते यहाँ पे, तो डबल कोट्स में देना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स जस्ट गिव इट अ डबल कोट, लेट्स डू इट लाइक दिस, सी वैम्प www डेमो test.txt, क्योंकि यहाँ देखो ये सब चिपक के आ गए ना, सी वैम्प, ठीक है। चलो डबल कर दिया हमने, ओहो एग्जीक्यूट हो गया, यानी जो मैंने यूनियन सेलेक्ट किया 1 2 वो एक आउटपुट फाइल में जाके स्टोर हो गया test.txt। कहाँ है ये आउटपुट फाइल, ये क्या बन गया, ये तो मैंने बनाया ही नहीं, test.txt सर्वर में बन कहाँ से गया, SQL से बन गया। मतलब पहली बार शायद तुमने देखा होगा कि SQL से कंप्यूटर में डायरेक्टरी भी बन सकती है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, अगर आप इसको ओपन करके देखो क्या है इसके अंदर, 1 और 2 जो वैल्यूज थी, और ये 1 2 कहाँ से आई, जो आपने बाहर से डाली थी डेटाबेस से। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज, ये तो है आपका डेटाबेस, ठीक है, ये है आपका वल्नरेबल मान लो सर्वर जो अटैकर को दिख रहा है, ठीक है। ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता दिया, ठीक है। ये है आपकी वो डायरेक्टरी जो मान लीजिए सर्वर पे है। अब हम यहां से इस अटैक को एक बार परफॉर्म करेंगे, ठीक है। लेट्स से यू वो -1 ताकि पहली कंडीशन गलत हो जाए। इसके साथ में मैंने एक दूसरी कंडीशन लगाई यूनियन सेलेक्ट, मैंने यहां पे एक नाम दे दिया देवांशु, दूसरा नाम दे दिया मान लो शुक्ला, ओके, इनटू आउट फाइल, ठीक है। अब अटैकर को कैसे पता चलेगा कि कौन सी डायरेक्टरी में फाइल बनानी है, वो पता चलेगा पाथ डिस्क्लोजर वल्नरेबिलिटी जो स्टार्टिंग में आई थी, क्योंकि उसमें पाथ आ रहा था कंप्यूटर का कि इस कंप्यूटर के सी ड्राइव में, वैम्प में, www में इस जगह पे एरर आ गया इस फाइल में, तो हमें उसका पाथ पता चल गया, ठीक है, क्लियर। अगर जैसे नहीं पता है पाथ तो हम वापस दोबारा ट्राई कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो हमने आईडी हटा दिया, ठीक है, सीधा PHP डाल दिया, ये एरर आ गया, सी वैम www accounts.php, डायरेक्टरी पता चल गई, सी वैम www डेमो के अंदर ये वाली फाइल चल रही है accounts.php। तो मेरे को यहाँ से दिख गया कि अच्छा मैं अगर डेमो डायरेक्टरी के अंदर accounts.php एक्सेस कर सकता हूँ, तो अगर डेमो के अंदर मैं कुछ अपलोड कर दूँ तो उस फाइल को भी मैं एक्सेस कर पाऊंगा, क्योंकि उसके राइट्स हैं हमारे पास यहाँ पे एक्सेस करने के लिए। नाउ लेट्स सी, सो नाउ व्हाट विल डू इट समथिंग लाइक दिस, क्वेश्चन मार्क id इज इक्वल टू 1, लेट्स सी ये डिफॉल्ट था, पहली कंडीशन मैंने फॉल्स कर दी, माइनस यूनियन सेलेक्ट, क्या किया, देवांशु शुक्ला, ओके, इनटू आउट फाइल, ओके, डबल कोट्स के अंदर फाइल का पाथ दे देता हूं सी डबल स्लैश, ठीक है। डबल स्लैश क्यों, क्योंकि मुझे पता है MySQL में सिंगल स्लैश काम नहीं करता, वैम्प www स्लैश डेमो स्लैश, लेट्स से मैं एक फाइल बनाऊंगा devanshu.txt, ओके। हूं कहां पे, URL पे,
एंटर किया, क्या हुआ, चलाया यूआरएल पे, और हुआ कहां पे, सर्वर की डायरेक्टरी में एक फाइल बन गई आपके पास devanshu.txt नाम की। क्लियर? मेन के बाद क्या है, ये अंदर की फाइल तो हम एक्सेस नहीं कर सकते, बट नाउ सिंस आई नो द पाथ ऑफ दिस, if I open this path and if I go here and if I type in devanshu.txt and if I test, so I have that file. Okay? Clear? So now this means I can write text on a web server without the permission of the web server administrator. Okay? अब देखो, अब चलो आते हैं मेन मुद्दे पे। ये तो हो गई बात आपकी सेव करने वाली। अब मैं कह रहा हूं कि यार मुझे देवांशु शुक्ला नहीं चाहिए, मुझे पता है क्या चाहिए, मुझे चाहिए HTML का कोड, ठीक है, /HTML, और यहां पे मुझे एक बॉडी चाहिए, लेट्स से, ठीक है। बॉडी में मैंने ऐसे बना दिया, दिस इज एन HTML पेज, लेट्स से, ठीक है। कोड लिख रहा हूं मैं, और यहां पे मैंने इसका नाम चेंज कर दिया hacked.html। क्लियर? एंटर किया, बन गई एक फाइल hacked.html। अब अगर इस घर से जाके devanshu.txt छोड़ के अगर मैं यहां से टेस्ट करूं hacked.html, क्या आ रहा है, HTML आ गया। मैं कलर डिजाइन कर सकता हूं, वेब पेज डिजाइन कर सकता हूं, यानी किसी दूसरे सर्वर पे मैं अपने पेजेस क्रिएट करूं। अब समझो और मेन मुद्दा, जब मैं ये कर सकता हूं तो मैं अपलोडर्स भी तो बना सकता हूं। यानी अगर मान लो मैं एक अपलोडर बना दूं सर्वर पे और उस अपलोडर से अपनी शेल अपलोड कर दूं तो काम खत्म हो जाएगा। यानी वहां पे अगर मेरी शेल चली गई तो मैं पूरा का पूरा उस सर्वर का एक्सेस कर सकता हूं, कंट्रोल कर सकता हूं उस सर्वर, ठीक है। अब देखो क्या, शेल डायरेक्टली क्यों नहीं डाल देता हूं, क्योंकि शेल का कोड बहुत बड़ा होता है, इसलिए डायरेक्टली नहीं डाल सकते, क्योंकि इसकी यूआरएल की भी एक लिमिट है, समझे। अगर कोई छोटा मोटा कोड है कुछ बाइट्स का, वो आप इंजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए वी कैन डू इट समथिंग लाइक दिस, लेट्स से मैंने यहाँ पे ओपन किया, व्हाट वी कैन डू, वी कैन डू इट समथिंग लाइक, एक शेल ले ही लेते हैं, कोई बात नहीं, शेल तो पड़ी होगी मेरे पास। लेट्स से जैसे हम इस जगह पे थे, I will go to an account here. On my machine, I have WAMP www shell. I would be having some shell kind of stuff. 4AG backup shell. I have a shell.php file here. ठीक है, जो शेल है कितनी बड़ी है, 67 KB की है। इसको मान लो मैं डेस्कटॉप पे स्टोर कर लेता हूँ। हाँ, इट्स अ कोड फॉर अ शेल, ओके। एडिट किया मैंने इसको, दिखाता हूं मैं आपको। ये एक शेल है, PHP के अंदर लिखी हुई है, जिससे कि आप पूरे के पूरे सर्वर को कंट्रोल कर सकते हो, उसे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। लेट्स से मान लो इसको मैंने कॉपी किया, Ctrl+A Ctrl+C, ठीक है, कर दिया। अब अगर मेरे को इस कोड को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं यहां जाऊं और इस यहां पे जहां पे मैंने HTML दिखाया था, इस HTML के बीच में इस कोड को मैं डाल दूं, Ctrl+V, ओके, सेव कर दिया मैंने PHP का कोड। अब अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं, तो मैंने कुछ एग्जीक्यूट किया, एक बार देखते हैं। अच्छा, वहां पे तो एक और दोबारा फाइल थी ना, कहाँ गया हमारा ब्राउजर, लेट्स से
दिस इज अ वेब शेल बाय ORB। इससे ज़्यादा आ ही नहीं रहा ऑन क्लिक जी मैनिफेस्ट के आगे, कोड ही नहीं आ रहा, उतनी लिमिट ही नहीं है क्रोम की, इससे इसको एग्जीक्यूट करने से कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि मैं आउटपुट फाइल तक पहुंचूंगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये लेंथ बहुत बड़ी हो गई कोड की। यही छोटा सा अगर कोई कोड हो तो हम अपलोड कर सकते हैं। अब देखो, तो अब हम इस जगह पे क्या करेंगे, हम एक अपलोडर बनाते हैं। क्या करते हैं? अपलोडर बनाते हैं। अपलोडर बनाने के लिए यू कैन सिंपली गो टू अ वेबसाइट समवट लाइक W3 स्कूल, वहाँ से आप अपलोडर बनाना सीख सकते हो, ठीक है, सिंपल सा अपलोडर होता है। मैं आपको एक अपलोडर का कोड दिखाता हूँ। ये है, जैसे यहाँ पे होगा मेरा, let me just show you। चलो बना लेते हैं, ऐसी भी क्या दिक्कत है। नाउ लेट्स सी, सो व्हाट विल डू, लेट्स से विल गो टू google.com, are we connected to internet? समझ में आ रहा है कि आप URL से इंजेक्ट कर रहे हैं और सर्वर पे बन रही है और आपके पास उसका डायरेक्ट एक्सेस है। Shall I connect to some other internet? चलो एक बार कनेक्ट करके शेल का कोड डाउनलोड कर लेते हैं। शेल का कोड मतलब वो अपलोडर का कोड। Now let's say, so what you can do is you can go to W3 schools PHP file upload, ओके इस तरीके से यहाँ पे एक अपलोड का कोड है जो आप यूज़ कर सकते हैं। ओके ये एक सिंपल सा पेज है जिसके थ्रू आप अपलोडर बनाएंगे, अपलोडर को कनेक्ट करेंगे, और ये है आपका क्रिएट द अपलोड फाइल स्क्रिप्ट। ओके इसमें अपलोड्स नाम की डायरेक्टरी के अंदर यू आर गोइंग टू अपलोड अ फाइल and you are going to get the image size, you are going to check whether it's an image or something, ऐसा इन्होंने कुछ बनाया हुआ है इमेज अपलोड करने के लिए, ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करने के लिए, लिमिट करने के लिए, फाइल साइज, फाइल टाइप, एंड दिस इज द कंप्लीट PHP स्क्रिप्ट फॉर द अपलोड। ओके सो लेट्स से सबसे पहले तो होगा मेरा पेज, या पहले मैं ये अपलोड स्क्रिप्ट लोड कर देता हूँ और फिर अपलोड स्क्रिप्ट के बाद में आई एम गोइंग टू क्रिएट माई इंडेक्स पेज जिसके थ्रू मैं अपलोड करूँगा। सो लेट्स से मैंने इसको कॉपी किया PHP कोड को, ओके आई हैव ओपन दैट इनटू अ नोटपैड फाइल, आई हैव जस्ट पेस्टेड दिस फाइल हियर। ओके अब सबसे पहली चीज, यहाँ पे जितने भी डबल कोट्स हैं आई हैव टू रिमूव इट, बिकॉज डबल कोट्स मैं यूज कर रहा हूँ URL में। ओके तो आई एम गोइंग टू रिप्लेस यूज Control H, replace double quote with single quotes, replace all। ओके सारे डबल कोट सिंगल कोट्स में कन्वर्ट हो गए। ओके आप देखिए टारगेट फाइल जो है वो अपलोड्स डायरेक्टरी है, ठीक है, इसको मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है। कौन सी होनी चाहिए मेरी टारगेट डायरेक्टरी? ये होगी मेरी करंट में जहां पे भी अपलोड है
सेम डायरेक्टरी भी हो सकती है, कुड बी द करेंट डायरेक्टरी. ओके, ठीक है, इट कुड बी अ करेंट डायरेक्टरी. सो लेट्स से टारगेट डायरेक्टरी अगर कहीं नीचे यूज हुई है तो हम इसको चेंज कर देंगे. टारगेट फाइल, upload OK, JPG file. If the target file exists, check file to upload and file to upload into this, and the target directory कहाँ पे है, यूज हुई है target dir. अच्छा यहाँ यूज हुई है, ठीक है. टारगेट डायरेक्टरी के हिसाब से उसने टारगेट का फाइल नेम ले लिया और उस फाइल नेम के अंदर उसने इसको स्टोर कर दिया. ठीक है, क्लियर. तो व्हाट वी विल डू, लेट्स से अपलोड्स टारगेट डायरेक्टरी डॉट बेस नेम के हिसाब से वो अपलोड करेगा बेस नेम ऑफ द फाइल्स. तो लेट मी जस्ट रिमूव दिस टारगेट डायरेक्टरी. विल जस्ट सिंपली टेक द बेस नेम in which we want to upload the file which we have taken, and I am going to remove the target directory. So there will be only target file. Upload OK के लिए एक 1 मिल जाएगा इसको. Image file type ये हम हटा देते हैं. Check if image file is actual image or fake image. Post image, check if it is this. If check is equal to file, file is image, upload OK, else upload not OK. और ये है आपका if वाले ब्लॉक का एंड. ये पहला एंड if else का, ये दूसरे वाले if का एंड. So what am I going to do? I am going to change the image file type and all this information from here. I'll just keep it upload OK equal to 1. ठीक है, या कहीं कुछ कम ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए मैं इसको ना Eclipse में खोल देता हूँ. बिकॉज समटाइम्स इट कोई ब्रैकेट इधर उधर हो गया, नोटपैड पे पता नहीं चलेगा. तो लेट मी जस्ट ओपन दैट इनटू Eclipse एंड वहाँ से हम इजीली इसको डिबग कर पाएंगे इस पेज स्क्रिप्ट को. लेट्स से सो विल गो इनटू द टेस्ट डायरेक्टरी. टेस्ट डायरेक्टरी में हम एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं अपलोडर नाम का. Now, so let's say I'm going to create a new PHP project here, and within this PHP project we're going to create something like uploader. Uploader नाम का एक प्रोजेक्ट बना लें. ठीक है, so we'll get a project known as uploader, and within this project I'm going to create a new file. Let's say this is going to be a PHP file. Okay, name of this upload file will be upload.php. Okay, so I'm going to paste the code within this upload.php file and I'm going to debug that. Okay, so this is the code here. So I've just removed the target file. Now what I just want, I want to remove this if block first, because I don't care whether it's an image, I want to upload a PHP file. So I'm going to change the image file type as well. We'll check if the file exists, then we'll say okay, this. Then check the file size. I'm not going to check the file size because I want to upload it to any such limit. Here it is allow certain file formats, so I'm going to remove that as well. I want to allow any file which I want to upload. Then upload OK equal to 0. Sorry, it could not be uploaded. Otherwise, the file will be uploaded. Okay. So move upload files will be used to upload the file, and that will be uploaded to a temporary directory. And then finally, whatever the base name of the directory is, that will be available. So in the current directory, our file will be uploaded. Okay. So this is like a simple PHP uploader which we want to create. Okay. Clear? अब मैंने इस कोड को कॉपी कर लिया और इसके अंदर सारे सिंगल कोड्स हैं. ठीक है, Ctrl A, Ctrl C. Now I will go to my this code here, and here in the Devanshu जो पहला वाला वो था मेरा, इसको मैंने डाल दिया अपना कोड PHP का. ठीक है, और जो दूसरा था शुक्ला वाला, इसको मैंने कर दिया ब्लैंक.
वैसे भी वो तो शुक्ला ही ट्रीट होगा, क्योंकि पीएचपी प्रोसेसर तो मैंने यहाँ पे पूरा एंड कर दिया. ओके, एंड नाउ आई एम गोइंग टू सेव इट विद द नेम upload.php. upload.php. okay, and I would like to open that directory as well, जिसके अंदर ये डेटा अपलोड होने वाले हैं. सॉरी, okay, so is that clear? So now we are creating a file known as upload.php. एंटर किया, बन गया आपकी upload.php. ठीक है, अब हमें क्या करना है, upload.php के अलावा I want an HTML page which will help me to take the file, browse the file and upload the file. So I'm going to copy this HTML, let's say from here. Okay, I'll go to Eclipse here. Now I am going to call it as something like my HTML file, or let's say I'm going to create anything. I can create any file. मेरे को तो सिर्फ कोड ही मॉडिफाई करना है, ठीक है ना. लेट्स से मैं PHP ले लेता हूँ, लेट्स से my या attack.php ऐसे ले लेता हूँ. ठीक है, फर्क कुछ नहीं पड़ता, वो तो attack.php. अब देखिए, अब क्या करेंगे, जैसे हम फॉर्म एक्शन करेंगे तो वील गो टू upload.php फाइल जो हम ऑलरेडी वहाँ पे पोस्ट कर चुके हैं. ठीक है, जैसे ये फॉर्म एक्शन होगा, यहाँ से एक पोस्ट रिक्वेस्ट जनरेट होगी, और वो पोस्ट रिक्वेस्ट क्या करेगी, जो भी आपका इनपुट है फाइल अपलोड टाइप का, वहाँ से उसको लेगी और अपलोड कर देगी. और ये सबमिट टाइप का बटन होगा, जैसे ही सबमिट होगा पोस्ट रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट होगी, एंड द पोस्ट रिक्वेस्ट विल गो टू upload.php, एंड दैट upload.php विल टेक द नेम एंड विल अपलोड द फाइल ऑनटू द सर्वर. हम ऑलरेडी कोड वहाँ पे इंजेक्ट कर चुके हैं. नाउ so instead of this upload image I am going to change it to upload shell. सिर्फ वैल्यू है, कुछ भी हो सकता है, आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने वैल्यू चेंज कर दी. ठीक है, नाउ लेट मी जस्ट रिप्लेस दैट विथ कंट्रोल F, फाइंड एंड रिप्लेस डबल कोट्स विथ सिंगल कोट्स. क्योंकि जब आप इसको यहाँ पे कॉपी करोगे और जब आप इसको यहाँ URL पे डालोगे, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी आपके पास एक डबल कोट है, तो अगर एक और बीच में कोई डबल कोट आ गया तो वहीं पे स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी और वो डेटा उतना ही जाएगा सिर्फ. ठीक है, कंट्रोल Z किया हमने, कंट्रोल Z नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से जाके पहले ब्रैकेट तक इसको उड़ा देते हैं PHP का. ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव रिमूव्ड. इसको मैंने कंट्रोल V कर दिया HTML को. I've gone to the end and इसको मैंने नाम दे दिया attack डॉट, लेट्स से अगर HTML है तो HTML, PHP है तो PHP, दोनों ही चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे एक्सटेंशन. ठीक है, so attack.php, let's say the name remains same, and here you have your that file attack.php. enter किया हमने. So now you can see that an attack.php has also been created. Okay, now if we go to the browser here, let's say 192.168.43.102/demo/attack.php. attack.php करने तो हमारे पास क्या आ रहा है, choose a file and upload the shell. okay, अब यहाँ पे कोई लिमिट तो है नहीं, हम कितना भी अपलोड कर सकते हैं. तो URL से अब हम बच गए, अब हमें बहुत बड़ा URL में कोड देने की जरूरत नहीं है, छोटा सा URL दिया हमने, अपलोडर बना दिया दूसरे सर्वर पे. ठीक है, अब देखिए यहाँ से मान लो मैंने एक फाइल चूज की, लेट्स से पहले मैं टेस्ट कर लेता हूँ ऐसी कुछ इमेज वगैरह छोटी सी कि वेदर माई अपलोडर इज वर्किंग और नॉट. तो मैंने रुपीज़ लिया, ओपन किया inr.png एंड आई ट्राई टू अपलोड द शेल. देर इज सम इशू विथ upload.php, वो एक बार फिर चेक करना पड़ेगा क्या कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही. अच्छा हाँ, आई गॉट द पॉइंट. upload.php में जो आपकी अपलोड डायरेक्टरी है उसका नाम आपको देना पड़ेगा. वील जस्ट चेक दैट upload.php. यहाँ पे है आपकी बेस फाइल नेम है move uploaded files, file to upload to a temporary directory target file.
the file dot base name files upload to files C. हमें एक टारगेट फाइल हमने लिया, you have to move the uploaded file, the file, sorry there was an error uploading your file. If upload is equal to OK, sorry if file already exists, no, if upload OK then target file is equal to this base name file to upload and name. अच्छा यहाँ से हमें देखना पड़ेगा, फाइल टू अपलोड ही हमने लिया है ना, हाँ हमने फाइल टू अपलोड ही लिया है, and we have given that to upload.php and we have that upload.php. So uploader का I'll just check the code and let you know. So this is your upload code, wherein what you can do is you have to take the target file name, okay, this is your simple upload code, target file जिसमें आपने base name लिया file to upload का, then you have taken the file and uploaded it to the server, okay. Now so this is your upload file and this is your attack.php. जैसे आप attack.php पे आएंगे, you can go to choose, you can browse to a shell, let's say on my vamp directory www or on my desktop directory I have a shell, okay, shell.php. So now I am going to open my shell.php. I can rename it to anything, okay. I am going to upload the shell and now you can see that the shell has been uploaded, okay. Now since we are into that directory, अब देखिए, so now if you go to demo and if you go to shell.php, okay, so you'll get complete access to the directory of that computer, okay, and you have access to full computer here. आप देख सकते हैं आप कौन सी डायरेक्टरी में, C ड्राइव में वैम्प में डेमो के अंदर डिटेल्स देखिए, विंडोज कंप्यूटर विंडोज 7 एडिशन, दिस इज द सर्वर IP एड्रेस, टोटल साइज इतने GB, कितना फ्री है, इतना MB फ्री है, पूरा कंप्यूटर का एक्सेस आ रहा है आपके पास, कितनी ड्राइव्स हैं, C ड्राइव एंड D ड्राइव. लेट्स से इफ यू वांट टू गो टू C ड्राइव, C ड्राइव के सारी फाइल्स, एवरी डायरेक्टरी ऑफ दैट कंप्यूटर इज हियर, ओके, ये मेरे पूरे कंप्यूटर का एक्सेस है. C ड्राइव के अंदर इफ आई वांट टू गो इनटू एनी स्पेसिफिक डायरेक्टरी I can go, okay, all my computer accesses. Let's say if I have gone to C drive, I have gone to the vamp directory, pqrstubw, vamp के अंदर www, here all my test backup codes, and this is I am accessing through a URL, okay. Let's say if I have gone to something like this, let's say where were we? We were into demo. And this is your files, accounts.php and everything, okay. Now I'll tell you one thing. Let's say I've got access to the server, okay, clear. Here we have the index.html. If I want I can delete that. Oh sorry, that is download, I can remove it, okay. So that has been, you highlight index.html, okay, just hold on, let me go to demo. I don't have it here. एक बार हम इसको कर देते हैं remove. Let's say I will execute a command and I will execute a command somewhat like this, del delete index.html, okay. So now if I list the directory, now you can see that index.html has been removed. So I can execute commands as well, okay. Let's say if I am at the command here, मैं यहाँ पे सीधा डालूँ IP config, पूरी की पूरी कंप्यूटर की IP configuration information, okay. जितनी भी आप commands execute करते हैं, कुछ भी ARP-A, complete list of ARP, तो पूरा सर्वर और उसके अंदर IPs, उतने सारे machines we can access, clear. So you have full control of the files, you can download, you can upload, you can modify anything. Let's say we were into this demo directory
and I want to hack the password of the database. Okay, so I can simply open accounts.php, and you can see that I've got the password of the root account of that database. I can see the code of that machine. Okay, now let's say here we have the SQL. We can go to SQL, and you can see that there is a MySQL server here on that machine. Host is localhost, root is this. Do I know the password? Yes, अभी देखा ना मैंने, मतलब अटैकर को पता नहीं होना था, उसने accounts.php को खोल के देख लिया क्या था पासवर्ड, ABCD 1 2 3 4 5. Okay, connect किया. Now you'll get a list of databases here, all the databases stored in that. So I've got access to SBI, executed, accounts table, values. Okay, now let's say, so what I'll do, I will do it something like select star from accounts की जगह I'll do something like this, update accounts. Okay, बैलेंस भी तो रखना है. अपडेट अकाउंट्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक है. अपडेट अकाउंट्स सेट बैलेंस इज इक्वल टू 1 2 1 2 3 4, ठीक है. वेयर नंबर इज इक्वल टू 1, सेमीकोलन, एग्जीक्यूट. Okay, go to accounts. Okay, and अब बैंक के पास उतना पैसा होना भी तो चाहिए. सौरभ के में से माइनस कर देते हैं. ओके, अपडेट अकाउंट्स सेट बैलेंस इक्वल टू 12 वेयर number is equal to 2 and execute. So now you can go to accounts, you can see that. Okay, so now if I go to ATM and if I withdraw money, I will get real money. Clear? Let's say, so here you can get the dump of that file as well, dump.sql. अगर आप करेंगे you can get the dump and you can do everything, anything whatever you want. Okay, SQL vulnerable साइट है तो वो साइट तो जाएगी और उस सर्वर पे जितनी भी होस्ट होंगी वो सारी साइट. यस, वो सारी जाएंगी, वो पूरा मशीन जाएगा और उस मशीन के अंदर और जितने आसपास में नेटवर्क हैं वो भी सब जाएंगे. कोई ERP स्पूफ भी तो करेंगे हम बैठ के. ओके, सो हैव यू गॉट द पॉइंट? So with a very small vulnerability, with a very small piece of code on a server, a complete server could be compromised. Okay, now you see how many website designers are there, those who know security programming. 99.9% they don't know. Yes. Okay, clear? So now have you understood the concept? So this is it.